ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੀ 1.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ? ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਜਾਣ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਗਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਯਤੀਮ ਸਨ, ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪਿਓ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਪੈਂਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹਾਲਾਤ। ਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਹਾਂ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਪੈਦਲ ਵਾਂਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ? ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਸਾਈ ਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਆਪੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਵੇਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਛਡਾ ਲੈਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਸਨ? ਪੋਤਰੀਆਂ पोतरियां सन, ठीक है पोतरियां सन जी। इनकी पोतियां थी दोनों, और उन्होंने नाम की सन? ਇਹ ਮੁੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਇਧਰ ਆਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਨੌ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁੰਨਾ। ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਫੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ 10-15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਗਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਨਹਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਸੁਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੀਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਵੇਖ ਲਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਪੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕੰਧ ਢਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਅੰਦਰੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫ੍ਰਿਜ ਖੜੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਨਾਲਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਏਡੀ ਸਾਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਭੱਜਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਅੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਗੈਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉੱਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗੈਸ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਜਲੇ ਹੋਈ ਆ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਗਈਆਂ ਜਲੀ, ਸਨ? ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਥੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਖੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੜੀਆਂ ਸਨ? ਬੱਚੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗੀ। ਹੈ 20-30 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਹੂੰ। ਇਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਬੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੰਦਰ ਜੇ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਨਾ
खबरदार तेन सारे टब्बर नूं अंदर देना है। पुलिस कहती है पुलिस आती है बैनर ला के एक पाड़ के बाहर लमके लिया साडे को आंदा जो लाया उस थाना केड़ा सदर? हाँ जी थाना सदर मुरीद के अच्छी जी सिटी। अच्छा सिटी इनके थाई सदरी उसे सीटी हो ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਨੱਠਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਠ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਥੱਲੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ। ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਹੈ ਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਮਾਮਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਠਾਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਛੜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਘੰਟੇ ਦੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਹ ਆਏ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ साडा कुछ नहीं लगता ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। कब्जा करना बस ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਗੂਠੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਖੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋ ਗਏ 16 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਸਟੇ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਹੈ DSC को ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਂ 2 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ DSC ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਖਦਾ ਜਾਂ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ठीक है। तो ये हालात है जी। अब जगह का रोला है यानी कि सारा डिस्प्यूट ही जो है वो घर का है जगह का है कब्जा करना चाहते हैं। बुजुर्ग है माजूर है ख़वातीन है आगे पीछे कोई नहीं है। माजूर है माजूर लत्तो मजदूर हो ना लत्तो। ਆਹੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ वो भी ये भी उन्होंने किया। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ हाँ 8 ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ अच्छा ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ ਮੈਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸਲਾਮਤ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ जज साहब नानते सर तो तुम्हारा एक्सीडेंट होया सही है। तो ये हालात है। मजीद इनसे बात करेंगे ऊपर जाएंगे। मैं पहले कैमरामैन को कहूँगा कि वो सबसे पहले जाए ऊपर और वहाँ के हालात आपको दिखाए और उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा आपको दिखाऊँगा कि वो कमरा जिसमें उस वक्त बच्चियाँ जब आग लगी उसमें बच्चियाँ लेटी हुई थी या खेल रही थी लेकिन बच्चियाँ अंदर मौजूद थी। दोनों मासूम बच्चियाँ थी जिसकी उम्र 1.5 साल और 3 साल थी। ऊपर चलूँगा और ये सारा मामला आपको दिखाऊंगा कि उस घर का वो क्राइम सीन जहाँ पर ये आग लगाई गई थी वो आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए जी ये दीवार गिरी है आग से और ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें दोनों बच्चियाँ रहती थी। ये देख सकते हैं आग इतनी शदीद थी कि कोई चीज़ ना छोड़ी यानी कि इतनी शदीद आग थी। हर चीज़ यानी कि घर की जो हर चीज़ होती है कपड़ों से लेकर बर्तन से लेकर ज़रूरत अशिया जो घर में इस्तेमाल की जाती है बल्कि बर्तन यहाँ पड़े हुए हैं चूल्हा है यहाँ पर कुर्सियाँ टेबल फर्नीचर चारपाई और ये कपड़े आप देख सकते हैं कि किस हालत में यहाँ पर पड़े हैं। और इसी कमरे में दोनों मासूम बच्चियाँ मौजूद थी जिनको जलाया गया बड़ी बेदर्दी के साथ तेल झड़क कर आग लगाई गई। जैसे कि बुज़ुर्ग ने कहा कि रहम नहीं आया तरस नहीं आया मासूम बच्चियों पर इसलिए कि उनको घर चाहिए इसलिए कि उन्होंने कब्ज़ा करना है इसलिए कि लालच है दिल में कि इनसे जान छूटे इनको डराएं धमकाएं इनका एक्सीडेंट करवाएं इनको रातों को तंग करें धमकियों की कॉल्स करवाएं आग लगाएं जो भी करें लेकिन घर चाहिए प्रॉपर्टी चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी GT रोड के बिल्कुल ऊपर है। करोड़ों रुपये मालियत की ये प्रॉपर्टी है और देखभाल के लिए ये बुजुर्ग था जिसे हमने बात की जो कि एक पाँव से माजूर था एक टांग से माजूर था। अब सितम ज़रीफ़ी देखिए
जब आग लगती है, बच्चियां मर जाती हैं, तो क्या तब ये जाते हैं बुजुर्ग पुलिस के पास। पुलिस उल्टा धमकाती है, थाना सिटी मुरीदके की पुलिस उल्टा धमकाती है कि भाई एप्लीकेशन वापस लो, ये आग हादसाती तौर पर लगी है, लगाई नहीं गई थी। भाई आप आए थे, आपने यहाँ पे क्या सर्च किया? उसके बाद 1122 की टीम आई होगी, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या रिपोर्ट मुरतब की? तो ये सारी चीजें होती हैं। इनके पास ना तो पुलिस की रिपोर्ट है, ना ही 1122 की रिपोर्ट है कि भाई ये आग कैसे लगी है। तो जब ये रिपोर्ट्स नहीं होंगी तो मामला मशकूक होगा, मामला मशकूक होगा तो फिर सवाल उठेंगे, जब सवाल उठेंगे तो फिर उंगली भी उठेगी कि भाई ये हालत है, ये मामला हुआ है। अब ये पूरा घर, ये पूरा कमरा, ये गरीबी की एक दास्तान है, यानी कि गरीबी की गुर्बत की एक तस्वीर है कि वो इस कमरे में रहते थे, इस कमरे में गुजारा करते थे, इस कमरे में सोते थे, खाते थे, पीते थे। मासूम 2 बच्चियाँ थी, उनका क्या कसूर था? अगर घर लेना था किसी और तरीके से ले लेते, जुल्म करना था तो ये जुल्म ना करते, इतना बड़ा जुल्म ना करते। तो ये हालात है जी, हर एक चीज़ जलकर राख हो चुकी है और कोई चीज़ यहाँ पर आपको सही नज़र नहीं आएगी। ये हालात है जी, और हालात बड़े ख़राब हैं यहाँ पर। ये आप कपड़े भी देख सकते हैं, ये सिलाई मशीन दिखाएं जी, ये सिलाई मशीन है जो इनके यूज़ के लिए थी। और इसके साथ साथ ये देख लें, ये कपड़े, अभी भी कुछ कपड़े बच चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर कमरा जलकर राख हो चुका है। ये पेटियाँ हैं, इसके अंदर भी कपड़े थे। ये 2 पेटियाँ हैं, 1 2 3 4 पाइयाँ, 2 पेटियाँ 3 4 पाइयाँ और कुछ कपड़े, घर के इस्तेमाल का सामान, ये सारा कुछ। लेकिन अब इस घर में कोई नहीं है, इस कमरे में कोई नहीं है, ना अब यहाँ कोई आता है, ना अब यहाँ कोई सोता है, क्योंकि जुल्म किया गया है, ज़्यादती की गई है, जालिम की जानिब से आग लगाई गई है, बच्चों को जलाया गया है। ये वो फ्रिज है जी, इस फ्रिज को क्या हुआ था? हाँ, जब आग लगाई गई थी तो ये फ्रिज कहते हैं कि दरवाजे के साथ लगाई गई थी ताकि कोई यहाँ से बाहर ना निकले, यहाँ से कोई जाए ना। तो ये हालात है जी, ये देख लें, ये कमरा, ये जाए हादसा हमने आपको दिखाना था, एक एक चीज़ आपको दिखानी थी ताकि हकीकत खुलकर बाहर आए कि आग किस तरीके से लगी। और ये जो एरिया है, ये यहाँ से टूटा गया है। अगर लगाई गई थी तो हो सकता है यहाँ से तेल झड़का हो, यहाँ से तेल फेंका हो, पेट्रोल, ये तोड़कर आग बुझाने आए थे यहाँ पर। तो ये है जी हालात। मज़ीद मैं बात करूँगा इस केस से रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं, मेरी कोशिश होगी कि जिन पर इल्ज़ाम है, जो डॉक्टर ज़ीशान जिसका नाम आ रहा है, जिसके ऊपर FIR भी है उसके वालिद के ऊपर, मैं कोशिश करूँगा कि उनसे भी बात की जाए कि ऐसा क्यों है, आप पर FIR क्यों हुई, आपका नाम क्यों आ रहा है, क्यों आप ऐसे कर रहे हो, ये बुजुर्ग क्यों आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, यानी कि मेरी ही ज़मीन हथियाना चाहते हैं, पैसों के लिए, लालच के लिए कब्जा करना चाहते हैं, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं ताकि मैं यहाँ से भाग जाऊँ प्रॉपर्टी छोड़कर। तो आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2 लाहौर का सबसे बड़ा LDA से मंजूर शुदा रिहायशी मंसूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन, रिंग रोड और फिरोजपुर रोड की प्राइम लोकेशन पर। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2, अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ पूरी फैमिली करे एंजॉय अनलिमिटेड डाउनलोडिंग एंड स्ट्रीमिंग। तो अभी PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट के अफोर्डेबल पैकेजेस हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या करीबी PTCL यूफोन सर्विस सेंटर तशरीफ लाएं। कपड़ों को दीजिए पावर वॉश, एक कंप्लीट फैब्रिक केयर। इसकी खास मल्टी एंजाइम टेक्नोलॉजी कपड़े के रेशों तक जाए, दाग हटाए और कपड़े की रंग को रौनक रखे बरकरार। कपड़ों को एक नया कल देता है। गाय पावर वॉश।
मैं हाँ मुबशर उस्मान। मैं हाँ नवीद जावेद। मैं हाँ रब नवाज। मैं हाँ मुबशर चौधरी। 7 न्यूज़ है। 7 न्यूज़ है। 7 न्यूज़ है। 7 न्यूज़ है। मजलूम दे नाल साडे नाल चोलस्तानिया दी आवाज। सच नी आवाज। शहर से शहरी इकबाल तक जिंदा दिलों के शहर के दिखाएंगे रंग। 7 न्यूज़ नई उमंग नई तरंग के साथ आपकी स्क्रीन पर। मैं हाँ मुबशर उस्मान। मैं हाँ नवीद जावेद। मैं हाँ रब नवाज। मैं हाँ मुबशर चौधरी। 7 न्यूज़ है। 7 न्यूज़ है। 7 न्यूज़ है। 7 न्यूज़ है। मजलूम दे नाल साडे नाल चोलस्तानिया दी आवाज। सच नी आवाज। Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space. तो मेरे साथ मौजूद है इसी केस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मुरीद के से अशफाक भट्टी साहब। क्या हालात है? बड़ा जुल्म है, बच्चों की जान ली गई, उनको जलाया गया, उनके मुताबिक आग लगाई गई ज़मीन के चक्कर के लिए। ये क्या मामला है, क्या डिस्प्यूट है और इतना बड़ा जुल्म अगर हुआ है तो क्यों हुआ है? जी बिल्कुल बिलाल भाई, जुल्म की अखीर है। उस वक्त जब हमने रिपोर्ट की तो हमें उस वक्त इत्तला यही मिली थी कि यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ठीक है। जब हकीकत सामने आई तो यहाँ के छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है इनका, जिसकी वजह से ये लोग जो बासर लोग हैं इन लोगों को आकर ज़लीलो ख्वार भी करते हैं, धमकियाँ वगैरह भी देते हैं। इन लोगों का कहना है, हमने उस वक्त जब रिपोर्ट की तो हमारे सामने जब यही चीज़ें आई थी कि ये वाक़या जो हुआ है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं हुआ, ये लिहाजा भी प्लानिंग है जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। तो अभी तक इन लोगों को इंसाफ भी नहीं मिला। वो बहुत से लोग हैं वो जिसकी वजह से वो जो लोग हैं ना इनकी ज़मीन प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इनके साथ पहले भी मामला हो चुका है। के लिए इतना बड़ा जुल्म कर सकता है कोई? आपको ये तो सारे ये तो हमारे जो आज के कानून है यही बता सकता है कि इन लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं। वो रिपोर्ट किधर है? पुलिस की रिपोर्ट किधर है? 1122 की रिपोर्ट कहाँ है? सर ये बेसिक का मामला है कि यकीन करें कि इनको लोगों को अभी तक कोई रिपोर्ट का इनको कोई ऐसा FIR की कॉपी किया, इनको कोई रिपोर्ट भी अभी तक इनकी FIR नहीं हो सकी उन लोगों पर। FIR अभी नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई। सुनने में आ रहा है कि हो चुकी है। हो चुकी है? इन लोगों का यही कहना है कि अभी तक नहीं हो चुकी है। रिपोर्ट FIR तो हो चुकी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। अरेस्ट बस बहुत से लोग हैं, वो समझते हैं पाकिस्तान का कानून कैसा है। अच्छा, आप लोग भी समझते हैं, सब लोग 1122 तो बड़ा एक गैर जानिबदार इदारा है, वो तो उनकी तो रिपोर्ट आनी चाहिए थी। उन्होंने रिपोर्ट उस वक्त यही दी थी कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से मामला हुआ है। उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी? ये उस वक्त रिपोर्ट शॉर्ट सर्किट वाला क्या सीन है? कच्चा ऐसा हमने जब रिपोर्ट की है तो उस वक्त तो ऐसा मामला कोई नहीं था। अच्छा, ठीक है। तो जो रिपोर्ट सामने नजर आई थी वो यही थी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये मामला हुआ। जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वो कैसे लोग हैं बाप बेटा? बासर लोग हैं। वो बासर तो हैं, क्या इस तरह की एक्टिविटी में पहले वो इन्वॉल्व है? कोई रिकॉर्ड है उनका? जब हमने अहले इलाका से भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल की तो उनके मतलब यही कहा जा रहा था कि पहले भी इन लोगों के साथ मामले ऐसे हुए हैं। देखिए जी, हमने काफ़ी कोशिश की कि उनसे भी बात की जाए, उनका मौक़िफ़ लिया जाए, डॉक्टर साहब को कॉल की जाए, उसके वालिद साहब को कॉल की जाए ताकि उनका मौक़िफ़ सामने आए। उनके ऊपर FIR है या उनके ऊपर इल्ज़ाम है तो वो आकर हमें अपना मौक़िफ़ बताया, हकीकत बताए उनका क्या मौक़िफ़ है। तो हमने बड़ी कोशिश की कि उनसे बात की जाए, लेकिन उन्होंने हमारा कॉल रिसीव नहीं किया। यानी कि बार बार उनको कॉल की गई। हम सारा दिन कॉल तो नहीं कर सकते, हमारा फ़र्ज़ था कि हम उनसे रब्ता करें, लेकिन उन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया। वो अपना मौक़िफ़ देना ही नहीं चाहते। तो ये हालात है। और मज़ीद क्या डिटेल है? ये तो बड़े गरीब लोग हैं, घर के भी हालात ठीक नहीं हैं, इनकी पोतियाँ थी वो, और बाप का भी सुना है उसके एक्सीडेंट हुआ है। थोड़ी सी और तफसील बताएं। इनकी तफसील यही है कि बिलाल भाई हमने इनके जब बेटों से भी बात की है तो उन्होंने ये कहा कि हमारा ज़मीन का टुकड़ा बा जिसकी वजह से ये लोग हमारे दुश्मन बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है। पहले नंबर पे उन्होंने ये भी बताया कि हमारा ज़मीन का टुकड़ा पहले इन लोगों ने हमसे हथियार भी लिया है। ठीक है, ठीक है। तो अब वो लोग ये छोटा सा टुकड़ा है इसको भी हमसे वो छीनना चाहते हैं।
कहना ये कितने की प्रॉपर्टी होगी जिसके पीछे पड़े हैं? चाहिए। ये तकरीबन बिलाल भाई मामूली से मामूली भी इसकी जो आइडिया लगाया जाए तो तकरीबन को 1 करोड़ 2 करोड़ के करीब करीब है ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है जो इनके नाम है, जी इनके नाम है इसके पीछे वो लगे हैं जी लगे। तो ये मुझे दीजिएगा माइक। बुजुर्गों मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗੋਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਮੁੰਡੇ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਿਰ 'ਚ ਥਾਣੇ ਖੜਾ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਰੋਦਾ ਰਿਹਾ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਆਹੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੱਦਦੇ ਆ, DSC ਵੀ ਸੱਦਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਦਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਸਟੇ ਹੋਇਆ, ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਤਨਖਾਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਥਾਣੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤਰੀਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਨ ਉਂਝ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ? ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਗਏ ਤਈਦ ਮਰੂਟ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੋਟੀ, ਪਾਪਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸਹੁਰੇ। ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਗਈ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਂਡੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਅ ਲੱਗਾ। मैं बैठा बाहर। ये हालात है जी, हमारा आना यहाँ बहुत ज़रूरी था और आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। कायक थे आपके सामने रखे कि प्रॉपर्टी की खातिर, हथियाने की खातिर क्या क्या कुछ नहीं किया गया, यानी कि जुल्म की एक दास्तान मुर्तब की गई और यहाँ पर बच्चियों की जान ली गई। इनके पीछे भी पड़े हैं, झूठी दरख्वास्तें दी जाती हैं ताकि ये लोग तंग हों। बच्चियों के जो ताया है वो मेरे साथ मौजूद है, इनसे मैं बात करूंगा कि ये जुल्म क्यों किया गया है और इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। भजन दसोगे की होया है, ये क्यों बच्चियों ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਵੱਖਰਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨੇ ਹਲਫੀ ਸਟਾਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀਏ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 2-4 ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਟੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾੜ ਪਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਚੂਨੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਆਪ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮਸਲਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਏ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਛੱਡਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮਕਾਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹਮਸਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੜੀਆਂ ਤੁੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੜੀਆਂ ਤੁੜੀਆਂ ਅੱਗ ਭਰਨ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਢਾਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸਾਡੀ। ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੜਨ ਵਾਲੇ ਚ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਾਣੇ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸਲਾਮਤ ਜੀ। ਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ? ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਹੋਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਟੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੋੜ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ 300-400 ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈਂਟਰ ਤੜਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਦੀਵਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਪਾਈ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ हो, कितने एक बंदे लगे हो। तो ये हालात है। मेरे साथ पड़ोसी भी मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आप लोग क्या देखते हैं यहाँ पर? ये जुल्म हो रहा है इनके साथ, प्रॉपर्टी को लेकर बच्चों को जला दिया, अब घर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। आप लोग क्या देखते हैं? पुलिस इनके साथ अच्छा सलूक कर रही है या नहीं? नहीं सर, देखें, मैं ना तकरीबन ये 2 साल से उन्होंने ना इनके ऊपर ज़्यादा वो जुल्म करना इंतहा कर दिया कि बेटा उसका डॉक्टर है, सलामत चौहान है। आप उसकी अमेरिका में हिस्ट्री चेक कर लें, उसने ऐसी चीज़ें ली हुई हैं जिनका भाई बहन का आपस में कोई डिस्प्यूजल है और वहाँ पे वो सस्ते दामों खरीद के कब्ज़ा कर लेता है। अच्छा। तो वो फिर उनको भी ब्लैकमेल करता है कि ये भी मुझे दे दो। अच्छा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर इनका अदालत में भी केस है, पुलिस आई है, हर दफ़ा पुलिस इनको तंग करती है, इनको पकड़ के ले जाती है और ये स्टे भी दिखाते हैं कि ये हमारा अदालत में केस है हमारे सामने। आपको इस बात की और लोग भी बाहर तस्दीक कर देंगे कि वो ये क्या स्टे अदालत क्या होती है। हम मैं सब कुछ जो भी कोई थानेदार उसने भेजा यहाँ पे, इन्हों को तंग किया और मुझे भी मेरा भी बेसिकली मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मुझे भी बुला के कि ये इनसे हमें जगह ले दो, किसी कीमत पे भी ले दो, हमने बेटे को अस्पताल बना के देना है। अच्छा। तो वो इनके वालिद साहब हैं, वो तो सेल नहीं करते अभी, तो वो कह रहे हैं कि मुझे मेरा हक तो पहले मिल तो जाए। सही है। तो इनके पास रजिस्ट्री, हम देखते हैं इनके पास रजिस्ट्री है। पटवारी के पास जाते हैं तो वो कहता है इनको जगह कोई नहीं है इनकी, कहीं पे भी यहाँ पे 1 इंच भी इनकी जगह नहीं है। बुजुर्ग की पीछे बाप की विरासत की है, फ्रंट से इन्होंने अपने चचा से हिस्सा लिया हुआ। ठीक है। उनकी 1992 की इनके पास रजिस्ट्री है। ठीक है। मेन जीटी रोड 24 फुट की। सही है। और उसने वो उनका वो 24 फुट फ्रंट पे कब्जा कर लिया और मुख्तलिफ हरबे से इनको जो ना वो ब्लैकमेल कर रहा है कि ये उन्हें बोने ये भी यहाँ मुझे दे दें, अपनी छोड़ दें जगह। सही। तो वो इनको बदमाश ला के यहाँ पे मैंने खुद सुना है इनके वालिद साहब को कुछ दिन हादसे के कुछ दिन पहले वो ब्लैकमेल करके गया, तड़ियाँ लगा के गया कि मैं आग लगा दूंगा, तेरे दूजे पुत्र भी मार देंगा, तू जड़िए ना बाबा जगह मैनू दे जाते, तू भी इथों नस जा। तो ये तो बर्बरियत इनके साथ बड़ी देर। बैनर भी लगाया था एहतजाज का? हाँ, वो इन्होंने फिर बैनर लगाया अपील बराए आला हकाम। अच्छा। के 2 मासूम बच्चियों का कातल और कब्जा ग्रुप सलामत चौहान से हमें इंसाफ दिलाया जाए। ठीक है। वो 1-2 दफ़ा पुलिस आई है तो इन्होंने कहा ये बैग का बैनर उतार दें। उन्होंने कहा ये बैनर नहीं हमने उतारना, हमारी ये बैनर कोई ना कोई यहाँ से गुजरेगा, हमारी सुनवाई हो जाएगी। तो एक दिन रात को, परसों रात को, बुध वाले दिन। अच्छा।
पुलिस वाला डाला आया, 4-5 बंदे उतरे हैं, इनके वालिद साहब को तशद्दुद किया और बैनर उतारे हैं। अच्छा। छत पे जाके बैनर उतार के और बैनर भी ब्लेड के साथ ले गई है और इसके वालिद को भी मारा है उन्होंने। अच्छा। और इन्होंने वहाँ पे तस्वीरें खींची हैं, उनके पास तस्वीरें हैं जब पुलिस वाले इनके वालिद साहब को मार के गए हैं। सही। और हमने खुद देखा है। ठीक है। यहाँ पे अगर एक दफ़ा कोई कुछ रोला पड़ता है, हादसा हो जाता है, यहाँ पे आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। सब ने देखा पुलिस वालों ने मारा है और इनके बैनर भी उतार के लेके गया है और हम देख रहे हैं कि इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये आग जो लगाई गई थी ये उन्हीं की जानिब से लगाई गई थी ताकि ये हम किसी तरीके से बाहर सब चले जाए, हम मकान को आग लगा। सर ये उन्हीं की तरफ से समझ लें। ठीक है सर, इनका वो देखें, ये मैं आपको अभी ऊपर विजिट करवाता हूँ। हम गए ऊपर, तोड़ फोड़ दिया सब कुछ। हाँ सब कुछ, तारें तूरें, हर हादसा तो पहले ही इनके साथ बना दिया है। सही। हादसा तो वो पहले ही इनके साथ बना गया है कि जो मर्जी इनके साथ हो, ना इनका कोई बुआ ना कोई बारी, हर चीज इनकी अपने साथ ले गया। एक मुकम्मल घर था, फर्नीचर था, हम हमसाए हैं। सही है। तो वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे सब बहन भाई। सही है। तो सर वो आप तड़ी लगा रहे हैं मुझे कि यार मैं ये कर दूंगा, तो वो देखें मैं फजूल तो नहीं कोई शहादत देता, कोई गवाही देता, मुझ पे तो कुरान पे भी हल्फ ले लें। मुझे क्या छोड़े, मैं और मोहल्लेदार बुलाता हूँ, आप उनसे कुरान पे हल्फ ले लें कि ये बंदा तड़ियाँ लगा के जाता है कि नहीं जाता इनको। अच्छा। तो वो सर वो मुख्तलिफ हथकंडों से इन्हें तंग करने की कोशिश करता है, हरासा करता है कि ये यहाँ से भाग जाए। अब क्या होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? सर ये देखें, इनके डॉक्यूमेंट चेक करें, इनकी ये देखें कि इनके साथ ये क्या हुआ है। सही। और ये किसी आला अफसर को, डीपीओ कोई एसपी जो भी आया है, उन्होंने इनको ही दबाया कि नहीं वो तो 60 साल बुजुर्ग है, वो तो वैसे है वैसे है। मैं कहता हूँ कि वो आए, डीपीओ साहब आए, वो सब आए, मैं उस बंदे का आपको और भी प्रूफ देता हूँ कि ये मरीज के में कब्जा ग्रुप है। ठीक है। मुनज़्ज़म एक ग्रोह है ये एक ग्रोह है। ये जो है सलामत चौहान ठेकेदार था, ये नलियां गटरां दे बंदा ठेके लेंदा था। सही है। अब ये इस तरफ आ गया है कब्जे वाली साइड में। उसने सर सारी जायदाद, उसके रिश्तेदार, उसका बेटा भी बन कि यार ये मैं जैसे तुम कहते हो करवा देता हूँ, मेरे बस वालिद साहब के आगे मेरी पेश नहीं जाती। ठीक है। मुझे पता है कि ये फ्रंट उनका है। सही है। ये उनके पास रजिस्ट्री है, इनके पास डॉक्यूमेंट चेक करें और इनकी आवाज़ जो है ना वो कहीं ऐसी जगह पहुंचाएं जहां से इनको इंसाफ मिल सके। तो ज्यादती है, जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। हमने आपको इस घर के हालात दिखाए, बच्चियों के साथ क्या हुआ वो आपको दिखाए, और उसके साथ साथ पड़ोसी से भी बात की, उनके ताया से भी बात की। तो हालात बद से बदतर हैं और मज़ीद धमकियाँ दी जा रही हैं। अब पुलिस क्या कहती है, पुलिस क्या कर रही है, ये तो हम पुलिस से जानने की कोशिश करेंगे। मैं जाऊँगा DSP इफ्तिखार वरिया जो कि यहाँ पर तैनात है, उनसे मैं पूछूँगा कि वो इनको इंसाफ क्यों नहीं देते। रिपोर्ट भी आ गई है की रिपोर्ट है रिपोर्ट की वो शॉर्ट सर्किट ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆਤਸ਼ਗੀਰ ਮਾਦੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰਾਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਫ੍ਰਾਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਫ੍ਰਾਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਰ ਮਦਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ SHO ਨਾਰੰਗ ਸਫਦਰ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਤੇ 336 ਵੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਵੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਨਾਲ SHO ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰਾਂਸਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਓਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਚਲੋ तो थाना सिटी मुरीदके के बाहर हम लोग मौजूद हैं। मेरी अंदर जाकर मुहर्रर से बात हुई, लेकिन SHO साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। DP ऑफिस में तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने कहा है कि फ्रेंसिक लैब की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये बताती है जो आग लगी थी घर में जिसकी वजह से बच्चियाँ झुलस कर जहाँ भाग हो गई थी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। तो फ्रेंसिक लैब की रिपोर्ट ये कहती है, लेकिन दूसरी जानिब उस घर के जो हालात थे, बुज़ुर्ग क्या कह रहे थे, उसकी फैमिली क्या कह रही थी, उसके साथ साथ वो कमरा क्या कह रहा था, और उसके साथ साथ उसके पड़ोसियों से जब हमने बात की तो कहा गया कि इनके पीछे ये डॉक्टर ज़िशान और उसके वालिद जो कि
हाथ धोकर पड़े हैं ताकि ये प्रॉपर्टी उनके नाम की जाए और ये साथ साथ जो साथ वाली जगह पर कब्जा किया उसके साथ जिस घर में ये अब रहाइश पजीर है ये भी लेकर यहाँ पर एक अच्छा सा आलीशान सा अस्पताल तामीर किया जाए। तो ये इनकी कोशिश है। तो सारी हकीकत हमने आपके सामने रखी, लेकिन मुहर्रर साहब ने हमें कहा कि फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट बताती है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। तो आज के रियलिटी चेक में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2 लाहौर का सबसे बड़ा LDA से मंजूर शुदा रिहायशी मंसूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन, रिंग रोड और फिरोजपुर रोड की प्राइम लोकेशन पर। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2, अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space. मैं तो वेट ही करती रहती हूँ। And you spend the whole Sunday with your friends. You know them यार। दानिश, नाइट गोल्फ का प्लान बनाए, भाभी से कोई भी बहाना करके निकल आ। जाएं, आपके फ्रेंड्स आपका वेट कर रहे हैं। और तुम? जाएं ना, वीकेंड एंजॉय करें। यकीन नहीं आ रहा ना? ये ट्रस्ट बनता नहीं, बनाना पड़ता है। जब से दानिश ने आयजा को लेक सिटी में घर लेकर दिया है, आयजा के लिए बाकी सब कुछ मीनिंगलेस सा हो गया है। क्योंकि लेक सिटी में सेपरेट गेटेड कम्युनिटीज, ह्यूज मेन बुलेवार्ड्स, lush green landscapes, majestic lakes, golf course, parks, secured open spaces, shopping mall, cinemas, restaurants, dancing fountain, schools, exceptional healthcare and connectivity. और यहाँ की नाइट लाइफ ने कर दिया है दानिश की लाइफ को बेहद आसान। लेक सिटी, बियॉन्ड लग्जरी।
7 ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ। 7 ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ। 7 ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਲੋਧਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। 7 ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। 7 ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ। आहट, सरसराहट और खामोश आंखों में छुपा खौफ, वो मखलूक जो सुनती है, महसूस होती है मगर सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाह गरीबन फुकरा। अल्लाह। रात के सन्नाटों में अनदेखी मखलूक की तलाश, अंधेरों और वीरानियों में ये कैसा शो। साहब आग लगी है बाहर। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा हर जुमे की रात 11:05 पर सिर्फ 7 न्यूज पर। 7 न्यूज सच के साथ। फैसलाबाद दे विच बेकसूर जवान ते चलिया छुरा। 7 न्यूज ने कढ़ लियांदा कातिलां दा खुरा। पुलिस ने आवाम उत्ते चढ़ाया जुल्म दा अजाब। 7 न्यूज ने लाया ए सब दा हिसाब। एक पासे शहर दे विचकार लगा चोरां ते लुटेरियां दा डेरा ते दूजे पासे सिर्फ कार्रवाइयां ਤੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਫੇਰਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ। देखिए प्रोग्राम FIR 7 हर बुध और जुमेरात की रात 11:05 पर सिर्फ 7 न्यूज पर। 7 न्यूज सच के साथ। मैं हूँ आपकी मेजबान ज़रगून अमानुल्लाह और आप लोग देख रहे हैं जान की अमान पाऊं। अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं, माशाल्लाह घबराई मज हुंदी है। माशाल्लाह कट्टे ने भी ये कीता हुंदा की हो गया भाजी, हौसला करो हौसला करो। की हो गया? मैं दिल दी मरीज हूं, मैंने मसला है। टांगे वाले ने कहंदा इथरे जाना, कहंदा 200 रुपया हो गया, घोड़े नूं पता ना लगे। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਲਗਾਓ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੇਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਫਨਕਾਰ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਨਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਬੋਲੇਗੀ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਬਾਹੂਗਾ ਬਾਹੂਗਾ ਬਾਹੂਗਾ। देखिए प्रोग्राम जान की अमान हर हफ्ते की रात 11:05 पर सिर्फ 7 न्यूज पर। 7 न्यूज सच के साथ। बुल्ले शाह दी नगरी कसूर तो मैं मलक आरिफ। जानिया तो मैं हफीज मेतला। पाकपतन शरीफ तो मैं मोहम्मद अली रहमानी। नसीराबाद का माया रुस्तम अली। गुजरांवाला तो तासीर मुगल। गामों की तो मैं मियां मोहम्मद शफीक। 7 न्यूज़ है मैं दे नाल। 7 न्यूज़ है हक सच दे नाल। 7 न्यूज़ आ सच संगत। 7 न्यूज़ है आवाम दे नाल। 7 न्यूज़ है इंसाफ दे नाल। 7 न्यूज़ है मेरे नाल। हसी खेल है सियासत, कुछ दी छेड़ है सियासत। असी वखावांगे, सब नू हसावांगे। आपसे कुछ सवालात करेंगे, आप उनके जवाब देंगी। वो तो ठीक है मगर लुडो तो सब नाल लई फिर रहे। वक्री बनावांगे सियासत। दिन जाओ ना कभी, आपको पूरे जिंदगी सैर करेंगे। ये हो गया, सीधा कराया 2 पे देखिए प्रोग्राम सियासत हर इतवार की रात 11:05 पर सिर्फ 7 न्यूज पर। 7 न्यूज सच के साथ।